آپ لوگ اپنی جگہ پر جائیں گے سب لوگ ہم بلا رہے ہوں گے جیسے آپ لوگ چاہیے نا کہ آپ چاہیے کہ ہماری بات پولیس کرے لیکن جب آپ لوگ اس کے اپنی سیٹوں پر بیٹھے کوئی بڑی نہیں کام ہے مہمانوں والا پیچھے ہو جائے اور بیٹھیے اس وقت ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں میریٹ ہوٹل کراچی سے. یہاں پر کراچی میں بجلی کی فراہمی سے متعلق نئی کمپنیوں کے لائسنس کے اجرا کے حوالے سے ایک سماعت ہو رہی ہے، عوامی سماعت ہو رہی ہے، پبلک ہیئرنگ ہو رہی ہے، جس کے دوران تھوڑی بدنظمی ہوئی ہے. ریگولر فنومینا ہے، جب بھی یہاں پر ہیئرنگ ہوتی ہے یا اپنے پیٹ کو ملا کر کسی طرح سے ہنگامہ کرواتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہمیشہ خراب کرتے ہیں. آپ رائٹ جو کچھ ہو چکی چیئرمین صاحب اسی لیے آپ کہہ رہے تھے پہلے پبلک کو سننے کا موقع دے تاکہ کے الیکٹرک کی جو بات ہو رہی ہے اس کے بعد یہی ہم یہاں پر صورتحال بدنظمی کا شکار ہے. کچھ لوگ جو کہ ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں کے الیکٹرک کے خلاف. پلیز سر بھائی بیٹھ جاؤ یار. یہ کیمرہ مین بھائی جان ہیلو یار آپ بھی تو ایشو نہیں بناؤ نا یار. ان کو بٹھاؤ یار پہلے یا تو پھر تصویر لو پلیز بھائی جان سڑک سے. کے الیکٹرک کے خلاف پارٹیشنرز کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہنگامہ آرائی جان بوجھ کر کی جا رہی ہے تاکہ سماعت نہ کی جائے. صبح 10 بجے سے سماعت کا سلسلہ جاری ہے جس میں یہاں پر موجود شہری تاجر حضرات، سیاسی سماجی جماعتوں کے جو عہدیداران ہیں وہ اور نیپرا کی جو اتھارٹیز ہے وہ لوگوں سے سوالات کر رہی ہے. لوگ آپس میں آرگیومنٹ کر رہے ہیں. کے الیکٹرک کی کوشش ہے کہ ان کی 2023 تک کی جو ایک خاص حیثیت ہے اس کو ختم نہ کیا جائے. تاہم یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اس بات کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. السلام علیکم. یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس پبلک ہیئرنگ میں آج آئے ہیں، آپ سب سے میری التجا ہے، ایک التماس ہے کہ یہاں پر خواتین بھی موجود ہیں، یہاں پر فیملیز بھی موجود ہیں اور جو مرد اٹھ کے اپنی سیٹوں سے آگے آ رہے ہیں اسٹیج کی طرف. کیا آپ جانتے ہیں کہ جو خواتین آگے کھڑی ہوئی ہیں جو ووٹنگ کر رہی ہیں وہ آپ کے آگے آنے کی وجہ سے آپ انتہائی مشکل کا شکار ہو رہی ہیں. اس پبلک ہیئرنگ کو ختم کر دیا جائے گا اگر آپ اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر بات نہیں کریں. کراچی کی بہت سی عوام ہے جن کے بہت سے سوالات ہیں. اگر آپ سیٹوں پر بیٹھیں گے نہیں اور یہ پبلک ہیئرنگ کنوین نہیں ہوگی تو یہ یہی ختم ہو جائے گی اور جو پینل ہے وہ چلا جائے گا. آپ سب سے التجا ہے اور التماس ہے کہ آپ اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں. دیکھیں جی آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، آپ فٹ ہو جائیں 5 منٹ میں.
5 मिनट के बाद रिसोर्ट चली जाएगी दवाई आप लोग बैठे प्लीज। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों के अहदेदारान जिसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान कराची की सियासत जो क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। MKM पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पर मौजूद है और सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, के इलेक्ट्रिक का के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अपने ग्रुप नेपरा को इस सपोर्ट करने के लिए जो आप दें। समाज देखिए अभी मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं मुझे पता है मैंने किसको टाइम होस्ट दिया कर है। रही है ये ख्वाजा साहब बोलिए। ख्वाजा इज़हारुल हसन अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। ख्वाजा सर दो चीजें हैं, एक तो सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाए। एक फैसला पार्लियामेंट से हो चुका है, सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाए प्लीज। कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली से हुआ है। सूबाई असेंबली से करारदाद मैंने पेश की थी, यूनानिमसली पास हुई है कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली खत्म करके दूसरे पावर प्रोड्यूसर्स को भी मौका दिया है। ये रेजोल्यूशन सिंध की असेंबली से यूनानिमसली पास हुई है और सिंध की असेंबली वो असेंबली है जहां से पाकिस्तान के रेजोल्यूशन पास हुई है। तो मैं समझता हूँ कराची के लोगों का यूनानिमस डिसीजन पार्लियामेंट को चला गया है और इसके ऊपर पार्लियामेंट भी तैयार है। एक और अहम तरीन बात यहाँ पर टेक्निकलिटीज करेंगे, जाहिर है लॉयर मैं बहुत सारी इनके लीगल आर्गुमेंट्स का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं जो सबसे बड़ा गैर कानूनी जुल्म जो गैर कानूनी काम हमारे साथ हुआ कि यहाँ के शहरियों ने, और उसमें नेपरा को भी मैं थोड़ा सा ये गुजारिश करूंगा कि आपने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल जो इशू किया था तो आपने इनको 6 महीने की थेफ्ट केसेस के अंदर आपने रिकवरी की इजाजत दी थी, लेकिन यकीन कीजिए कराची का तकरीबन हर तीसरा कंज्यूमर आपकी उस रिलैक्सेशन की वजह से के इलेक्ट्रिक को 6 महीने के जुर्माने, एक साल के जुर्माने लग चुका है। सिर्फ इंडस्ट्री के 1.6 बिलियन लास्ट ईयर का जो है वो जुर्माना अदा किया। दूसरी बात ये है कि देखिए आपकी जो सर नेपरा है बड़े एहतराम के साथ कि सर आपके पास 3 पावर्स हैं। एक आप रेगुलेशन ऑफ द जनरेशन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 के तहत आपके पास ये सारी पावर्स हैं। इनके सेक्शन और रूल देखिए, एक्ट के अंदर एक लॉ मौजूद है, लॉ के तहत रूल है, लॉ पार्लियामेंट ने बनाया। नेपरा एक ऑटोनोमस बॉडी है जो ये अपने लॉ को इंटरप्रेट कर सकती है और लॉ के तहत जो रूल बने तो आप उस रूल की इंटरप्रिटेशन करें, लेकिन नेपरा ने प्रूव कर। तो ये जितने सेक्शंस आपने कोट किए हैं ये सेक्शंस इस लॉ के तहत उस रूल्स के जिसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं आपके पास 1997 एक्ट के तहत। एक और सबसे इंपॉर्टेंट सी गुजारिश ये है, कंज्यूमर कोर्ट में कभी भी गए ही नहीं, मैं सैकड़ों कंज्यूमर कोर्ट की साइटेशन का डिसीजन दे दूं, हम सब ये कंज्यूमर और कंज्यूमर राइट्स की सबसे बड़ी खिलाफवर्जी के इलेक्ट्रिक की, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने जब शुरू में मौजूदा मिनिस्टर पावर और हम सब थे पार्लियामेंट में से कमिटमेंट हुआ था कि ना सिर्फ ये पावर जनरेशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगे, सोशल सर्विस भी देंगे। सोशल सर्विस में इनके साथ और बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जनाब को लैपटॉप में ब्लैकबेरी मैनेजमेंट से लैपटॉप मैनेजमेंट से नोटपैड मैनेजमेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजमेंट से शिफ्ट हो गई और पिछली सारी मैनेजमेंट अफ्रीकन कंट्रीज में पावर जनरेशन का बिजनेस है। कमाल की यहाँ से लेके एक और मैं आपको बताऊं सर इंडिकेटर्स, आपने नहीं सामने बात की रिपीट भी करूंगा, ये इलेक्ट्रिक लॉस में 4000 लोग जब जुम्मे से कलम इस शहर में डालिए कि जनाब ओवर एम्प्लॉयमेंट, तो हमने जब वो 4000 लोगों के साथ पैकेज किया और उन लोगों को इन्होंने जब
पूल में डाला, हमने कहा ठीक है जी तो आप हेल्दी पैकेज दें के इलेक्ट्रिक ताकि प्रॉफिट में। फिर इसके बाद एक और इंडिकेटर मैं आपको देता हूँ, ऐसे इंजीनियर है, इनके पास एसबिल्ट ड्राइंग ही नहीं, आज भी इनके पास एसबिल्ट ड्राइंग नहीं। अगर वो 30 साल पुराना सुपरवाइजर डिफेंस में अगर घूम रहा है 25 साल पुराना, तो वो अपने अंदाजे से तो अंडरग्राउंड फॉल्ट तक ले जाएगा, लेकिन इनके पास कोई ऐसी डिटेक्शन एलिमेंट, कोई ऐसी ड्राइंग नहीं है कि इनके पास आज से 30 साल पहले 25 साल पहले कंस्ट्रक्शन था उसको देखो। इनका जो फॉल्ट डिटेक्शन रेशियो है नॉन कराची और डिफेंस में वो 6 से 8 है। अगर कहीं फॉल्ट आ जाए तो 6 से 8 घंटे से डिटेक्शन में मिल जाता है। एक और इंडिकेटर मैं आपको देना चाहता हूं सर कि ये जो बात की लेकिन सामने है कि बारिश हो जाती है, ये कोई आज से तो हर 15 साल में हैवी रेंज की तो हमें जरूरत ही नहीं है। हमें तो जरा सी वो फुहार पड़े तो सबसे पहले हमें फिक्र हो जाती है कि लाइट कब जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गर्मियों में पेट्रोल नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं। हमने के इलेक्ट्रिक के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था कि हमने सूबाई असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास की थी, क्योंकि उसका नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने पहली गवर्नमेंट ने तय कर लिया था कि इलेक्ट्रिक को 650 नेशनल ग्रिड से जो है मेगावाट बिजली नहीं दी। हम कोर्ट में गए, हमने इनकी सपोर्ट की कि वो 650 मेन ट्रांसमिशन लाइन से कंटिन्यू होनी चाहिए। फिर 276 MMCFD सुई गैस से आज भी वो अनइंटरप्टेड मिल रही है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस रही है। और आखिरी में कुछ पॉइंट्स ये हैं सर, ये पीएमटी ये सारी चीजें ये सब तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि आपको ज्यादा पता है, ये लोग यहाँ बैठे। कोरोना आया सर, मेरी मिनिस्टर यूनुस साहब, गवर्नर साहब और ये इलेक्ट्रिक से की मुलाकात थी सर। कोरोना में पूरा शहर 5 बजे बंद हो रहा है, पूरा शहर 5 बजे बंद हो रहा है। इंडस्ट्रीज बंद थी, शॉपिंग सेंटर बंद थे, एंटरटेनमेंट बंद थे, सब कुछ बंद था। लोड शेडिंग नहीं हो गई। ये डिमांड एंड सप्लाई का कौन सा फार्मूला है? इसे कोरोना क्राइसिस के अंदर भी लोड शेडिंग को नहीं रोक सका। फिर एक और चीज सर, एक मिनट आपसे भी गुजारिश है और ऑनरेबल चेयरमैन साहब आपके मन से ये हमारे साथ ज्यादती में नोटिस की, ये कौन सा कंज्यूमर राइट है हमारा कि हम प्रोडक्ट को जितना इस्तेमाल करें तो प्रोडक्ट उतनी महंगी हो जाए। यानी अगर मैं कोई प्रोडक्ट लूं तो वो प्रोडक्ट तो सस्ती होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये रूल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज गलत है कि पीक आवर का एक आपने जो नॉन यूज किया, पीक आवर में जनाब मैं जितना इस्तेमाल करूं मेरा उतना ही बेड़ा था। मैं तो जितनी बिजली इस्तेमाल करूं मेरा टैरिफ उतना कम होना चाहिए। एक और सिर्फ मैं ये गुजारिश करूंगा सर, बिजली की रिलेशनशिप पानी के साथ कोई एक रिजर्वायर, कोई एक पंपिंग स्टेशन, वो धागे की ट्रांसमिशन लाइन, जहां बिजली गई समझ लें वहां पानी भी चला गया। और गरीब इलाकों में जो बिजली जाती है तो 2-2 कमरों के घरों में जो कोरोना में लोग बैठे थे, आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं वो कोरोना में एसओपी फॉलो कर रहे हैं। ये तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लोगों का कत्लेआम किया गया कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसीज की वजह से। और इन शॉर्ट सर मैं ये कहूंगा कि दूसरे पावर प्रोड्यूसर्स को आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक आज भी प्रॉफिट में है। अगर आप आज 6 बिलियन प्रॉफिट में हैं और आज आप अपने शेयर इंटरनेशनल कंपनीज को बेच रहे हैं, तो वो कराची के लोगों का आप पर एहसान है जो आपके जुल्म को बर्दाश्त करते रहे। अब नहीं सर, मैंने सूबाई असेंबली की रेजोल्यूशन पास करने का मुझे एजाज है, कौमी असेंबली की एक्सचेंज है, आप दूसरे पावर प्रोड्यूसर्स को मौका दें। आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सर। बात नॉलेज के लिए भाई साहब भी और आप लोग भी, सिर्फ एक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, जैसे यहाँ पे एक क्या सिटीजन फाउंडेशन थी, सिटीजन लाइजेंस कमेटी थी, नहीं फोरम नहीं, एक जो जी इस उस पे आपने कंज्यूमर्स की कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई जो कि 2005 से इनके साथ डे टू डे बेसिस पे इनको भी मशवरे देती और अपना एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे पूरे कराची को रिप्रेजेंट करती? ऐसा तो नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको। मोइनुद्दीन हैदर मेंबर है वहाँ पे। यार ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने जाना है तो मैं आपकी बात जल्दी सुन लूँ। देखिए आप बैठे जरा, मेहमानों के साथ ऐसे नहीं पेश आते। आपके लिए पूरा टाइम निकाल के आए, आपको उसी वक्त टाइम मिलेगा जब आपका नंबर आएगा। मैं देख रहा हूँ मेरे जहन में है किसने कब हाथ रेज किया है। देखिए हम गुजारिश करना चाहते हैं हैदर है साबिक डॉक्टर, मैं भी फर्स्ट सर्वेंट रह चुका हूँ और हमारे बहुत एक्टिव हैं वुमेन एक्शन प्लीज
नरगिस रहमान नाजी हाजी साहब मेरे बैठे हैं। ठीक है सर, वो आपका पॉइंट आ गया। पॉइंट क्या है? I want to make my point. It's not that we also have a right to say since I'm here that ले लूंगा देखिए पहली बात तो ये हाँ मैं ले लूंगा रिश्ते है कि ये जो है ये प्राइवेट है उसमें चाहिए या नहीं, और दो बात दूसरी है कि इसको डिसइंटीग्रेट करना चाहिए कि नहीं। एक थर्ड ऑप्शन भी है कि एसी किसी एक एंटिटी को दी है, जैसे शंघाई ऑपरेशन थी और पता नहीं उसको किसने बुलाया यहाँ से। दूसरा ये कि वो लोग भी आज बहुत खराब बोल रहे हैं, जो कि जब ये प्राइवेटाइज हुई थी और अपराध लोग को दे गई थी तो वो सब क्यों खामोश थे? Why was there a resounding silence by then the party which used to say कि नायब के गद्दार हैं, मौत के हकदार? तो ये वो लोग हैं और उस वक्त जो है ये पार्टी कहते हैं resounding silence। चलो ठीक है सर, just one second। फिर आप देखिए ऐसी जब आप से बात सुने Sir, he is related to the Pakistan People's Party and he is accusing me directly. और मैं I can interrupt you. I can interrupt you. see what this hall is about. Sit down. You don't have to go. No, how dare you do that? How dare you tell that? मसला देखिए, तो आप कह रहे हैं कि ये जो राइट का मसला ये है, जो पॉलिटिकल मसला है। पार्टियों में अस्करी विंग के साथ मिले हुए लोग कोई मसला करेंगे, कोई आदमी कोई बोल नहीं सकता। आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो यार शायद ये कांग्रेस साहब ठीक है, आप तो बात नहीं सुनना चाहते, नहीं आप तो बात नहीं सुनना चाहते, आपने बात पॉलिटिकल की तो वो रिएक्ट किया उन्होंने। चलिए आपको बैठ जाए प्लीज, आपको बैठ जाए प्लीज। आपको बोलने दे कैसे बोलेंगे? ऐसी बातें हमने रिएक्ट किया ऐसा बैठ के बना ले यार, तो दूसरों का भी काम खराब कर रहा है। अरे मेरे खड़े ना कुछ मेरे आगे भी अगले आए हैं, मैं पीछे खड़ा हुआ था। वो पहले उस बंदा से बात कर रहा था, उसका वो बुला दिया। तू वहाँ पे पहले बात कर रहा था, बिल्कुल अपना मार दिया। ये लोग चाहते हैं कि मेजॉरिटी को बोले तो We need security here to hold the flag. गुफ्तगू थोड़ी सी सियासी हो गई है और इसके हवाले से यहाँ पर थोड़ी पॉलिटिकल एंगलिंग हो गई है, तो जिसकी वजह से बदनज़मी है। तो नेपरा की कोशिश है कि सियासी एंगलिंग ना की जाए, बल्कि इस मामले को तो बुनियादी तौर पर इसी पैराहे में देखा जाए कि जो असल मसला है कि आया कराची में बिजली की तरसील के लिए नई कंपनीज़ को लाइसेंस दिया जाए या न दिया जाए। हाफिज़ नईमुर रहमान ने इज़हार ख़याल किया, ख्वाजा इज़हारुल हसन ने इज़हार ख़याल किया और उसके बाद कुछ लोग और उठे। कराची के तमाम शहरियों अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक होना बहुत सारा उनके हाथ में ना हो, हम अपना गुस्सा ना करें, हम जज्बाती ना। अगर हमें लगता है कि किसी साहब ने यहाँ पे एक सियासी पॉइंट्स को किए, हम उनको प्यार से समझाएं कि इस वक्त बिजली हर एक के घर में है और लोड शेडिंग भी हर एक के घर में, ठीक है, तकलीफ हर एक के घर में है। ये जमात इस्लामी एमपी को लेकर आप लोगों ने हमारी बात सुनी है।
जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको हम अपडेट करते चलें। कराची में बिजली की तरसील के लिए क्या दीगर कंपनियों को लाइसेंस दिया जाए, इसके हवाले से नेपरा की समाअत जारी है कि इलेक्ट्रिक और पटिशनर और शहरियों की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं हक़ में और मुखालिफत में, और थोड़ा सा सियासी पॉइंट स्कोरिंग हुई जिसके बाद माहौल गर्म हुआ। और बदतमीजी के बाद समाअत ख़त्म कर दी गई है। नेपरा के अहदेदारान समाअत छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हुई। आपको अपडेट करते चलें। फ़िलहाल टाइम्स ऑफ कराची से इतना ही। हम आपको आखिर में अपडेट कर दें कि यहाँ पर समाअत ख़त्म कर दी गई है। आज नेपरा की जानिब से समाअत रखी गई, खुली अदालत लगाई गई कि क्या कराची में बिजली की तरसील के लिए नई कंपनीज़ को लाइसेंस दिए जाएँ, जिसके हवाले से जो जमात इस्लामी, MQM और दीगर सियासी समाजी शख्सियात समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और भाई साहब ये आखिर में क्या हो गया एकदम से जो समाज चल रही क्या समाज जो चल रही थी इस वक्त ख्वाजा इज़हारुल हसन इज़हार ख्याल कर लें। आप समझते हैं कि लाइसेंस तब्दील होने चाहिए, तब्दील होना चाहिए, बिल्कुल तब्दील होना चाहिए। असेंबलियों से आप इसे लेना चाहिए, गवर्नमेंट में आने चाहिए। पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामेंट के अंदर कानून की तब्दीली पार्लियामान का हक है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। ये पब्लिक हियरिंग एक प्रोसीजर का पार्ट था। मैं समझता हूँ कराची में मजीद पावर कंपनीज आनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक अगर अपना काम अच्छे परफॉर्म करे तो ज़्यादा कंज्यूमर जाएंगे, अगर बुरा परफॉर्म करेगा कंज्यूमर कहीं और जाएगा। देखिए हमारा राइट है। और नेपरा से मैंने दो इतराज़ किए कि जो सबसे बड़ा नेपरा ने फेवर दिया कि इलेक्ट्रिक को, वो पीक आवर्स का दिया। नेपरा की ये मैं समझता हूँ हमारे साथ संगीन ज्यादती है। इसमें नेपरा को भी नोटिस लेना चाहिए। हम जितनी बिजली इस्तेमाल करें उतना ही उसका पेमेंट करें। पीक आवर्स नेपरा। और दूसरा नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 6 महीने के बाद चोरी की मद में वसूल करने का इख्तियार दिया। इन्होंने हर शहरी से 6 मत के ले लिए, 6 महीने के जो है वो बाबाजी बात ले लिए। नेपरा अपना किला दुरुस्त करे। के इलेक्ट्रिक को जब नेपरा ठीक होगी, नेपरा रेगुलेट करेगी तो के इलेक्ट्रिक खुद जो है ना इंसान बनेंगे और उनका दिमाग दुरुस्त होगा। और हम हिमायत करते हैं दूसरी कंपनियां जल्द अज जल्द लाएँ। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हमारा मुतालबा हो चुका है। मिनिस्टर उमर अयूब साहब
हमारे MNA सारी कौमी असेंबली में करारदाद पास कर चुके हैं, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा ख्वाजा साहब ये बता दीजिएगा, मसला हल होगा कराची की सड़कें मसला हल हो चुका है, हियरिंग प्रोसीजर का हिस्सा है। ख्वाजा साहब अगर ये मसला हल नहीं होता, हमने देखा ये है कि नहीं टेक ओवर नहीं है, देखो दूसरी कंपनीज को लाइसेंस देंगे, उसमें रशियन कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, सिंगापुर की बहुत सारी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो कैबिनेट से ये फैसला होगा और ये रेगुलेशन जो रूल है इसमें अमेंड करके हम ख्वाजा साहब हर हेयरिंग में हर हेयरिंग में इस तरह हंगामाराई होती है, हर हेयरिंग में इस तरह हंगामाराई होती है, ये बताइए हर हेयरिंग में ऐसे हंगामाराई होती है, प्लांटेड लोग लाए जाते हैं, हेयरिंग खराब की जाती है, इस पर क्यों खामोशी है, इससे बताइए क्यों नहीं? मैंने यही गुजारिश की थी जमात इस्लामी से भी और पीपल्स पार्टी से, हम ये सियासी बात करने थोड़ी हैं, हम तो लोगों की बात नहीं। लेकिन जब हम जो के इल्जामात का अफसोसनाक सिलसिला शुरू हुआ तो जब और फिर के इलेक्ट्रिक की तरफ से भी बहुत सारी मैन पावर आई जो के इलेक्ट्रिक के फेवर में बात करना चाहते थे, तो हमें सुनना चाहिए, बात फेवर में सुने। आपको लगता है प्लांटेड लोग होते हैं जो पैसे देकर लाए जाते हैं? आपको लगता है प्लांटेड लोग होते हैं जो पैसे देकर लाए जाते हैं? ये मैं इसका गवाह तो नहीं हूं, लेकिन प्लांटेड होते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब ये बता दीजिएगा कि जैसे अभी हुक्मरान जमात है उसके हवाले से कहा जाता है कि वो के इलेक्ट्रिक को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर दौर की हुक्मरान जमात के हवाले से ये सवाल उठाया जाता है, आपके हवाले से भी किया जाता रहा है, पीपल्स पार्टी और अब PTI के हवाले से, तो ये क्यों होता है ये सवाल लोगों के जहन में, क्या और इसकी कोई हकीकत है? इसी में ऐड कर लीजिए कि फिर जो के इलेक्ट्रिक के बड़े जो CEOs हैं वो मतलब जो अबराज है वो के PTI के फाइनेंसर भी रह चुके हैं, तो आप नहीं समझते कि इतनी आसानी से ये हो जाएगा या चली जाएगी? ये एक मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन देखें अगर पार्लियामान ने फैसला कर लिया तो मुश्किल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें डायरेक्शन है। जहाँ तक बात है पूरे पाकिस्तान में ये पहली कंपनी थी जिसने आकर पावर सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया था। बाकी थर्मल कंपनीज भी हमारे पास हैं, हमारे पास लोकल कंपनीज भी हैं, लेकिन इस कंपनी से हमारी तवक्कुआत ये थी कि कराची में लोगों को अनइंटरप्टेड बिजली फराहम की जाएगी, अनअनाउंस लोड शेडिंग नहीं होगी, जिसमें ये नाकाम रहे। लेकिन इससे पहले जब कराची इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट के पास थी तो वो इससे ज़्यादा बुरा हाल था, उसमें भी करप्शन थी, उसमें भी ज़ाहिर अकरबा परवरी थी, बहुत सारे 1990 से प्राइम मिनिस्टर हाउस की इंटरफेरेंस रही है कराची इलेक्ट्रिक के अंदर, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में, तो इसको इंडिपेंडेंट किया था नेक नियति पे, जिसमें ये नाकाम रहे। हम समझते हैं और कंपनी सर आप लोगों ने कितने लोग भर्ती करवाए कि इलेक्ट्रिक में, ये बताया कहा जाता है कि आप लोगों ने भी सबने जमा कर भर्ती करवाए के इलेक्ट्रिक में, MKM ने कितने लोग भर्ती करवाए? 4000 लोग निकाले गए। और एक बात हमेशा याद रखें, कराची का डोमिसाइल वाले का वो साथ खड़े हुए, आपको बोलने की क्या जरूरत थी? हम सब चुप हुए आपकी वजह से। अच्छा मैं इंटरव्यू देके आपकी तरफ आ रहा हूँ, कराची इलेक्ट्रिक कराची की कंपनी है, कराची के लोग भर्ती नहीं करेंगे तो फिर कराची के इलेक्ट्रिक कराची दुश्मन है। कराची के हर इदारे में कराची का लड़का भर्ती होना चाहिए, चाहे किसी भी कौमियत का हो। और जो बात ये कहता है कि MKM ने भर्ती कराया है, अगर कराची के बच्चे भर्ती हुए हैं और MKM के अगर आप ताज पहनाना चाहते हैं तो हमें खुशी है, वरना तो कराची के अंदर पूरे सूबे से पूरे मुल्क से जाली डोमिसाइल लाकर कराची की कंपनियों में सरकार में भर्ती की है। हमें तो कराची के रोजगार चाहिए। थैंक यू आइए।